the ship and comply with helm orders in English language. A compass is an instrument on a ship which displays her direction, called ship's heeling at all time. कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग पता चलता है हम लोग का शिप किस डायरेक्शन में हेडिंग कर रही है. There are two types of compass fitted on ships, namely the magnetic compass and the gyro compass. शिप में हम लोग के पास दो टाइप के कंपास रहते हैं, जिसका एक का नाम मैग्नेटिक कंपास है, दूसरे का नाम गायरो कंपास है. The magnetic compass is housed on the Monkey Island above the navigating bridge and reflected into the bridge by means of periscope-like device, so a helmsman can easily read the compass when he or she is steering the ship. जो मैग्नेटिक कंपास रहता है वो हम लोग का मोंकी आइलैंड में रहता है, नेविगेशन ब्रिज के ऊपर, पर उसका जो रीडिंग है वो रिफ्लेक्ट करता है पेरिस्कोप के द्वारा, ताकि हेल्मसमैन जो ऑर्डर देगा वो इजीली उसे देख के नेविगेट कर पाए. Our Earth is a very big magnet because of which has a very strong magnetic field. हम लोग का अर्थ को हम लोग बड़ा मैग्नेट बोलते हैं क्योंकि उसके चारों ओर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है. The magnet in a magnetic compass fitted on a ship aligns with the Earth's magnetic field and provides direction to mariners at sea. यही मैग्नेट है जो कंपास उसके वजह से डायरेक्शन चेंज करता है और सी मराइनर्स को हेल्प करता है नेविगेट करने के लिए. Magnetic compass. Anyone who wishes to learn to steer must first be able to box the compass. जिसको भी शिप को स्टेयर करना हो उससे पहले उसको कंपास बॉक्स को अच्छे से जानना होता है. Altogether, there are 32 points on the compass card and they are in order of importance. सबको मिला के हम लोग के पास 32 पॉइंट्स हैं पूरा कंपास में रीड करने के लिए. The four cardinal points, they are north, south, east, west. हम लोग के पास 4 कार्डिनल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से जानते हैं. And the four intercardinal points, they are northeast, northwest, southeast and southwest. हम लोग के पास 4 इंटर कॉर्डिनल्स पॉइंट हैं जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट से जानते हैं. The 8 three-letter points, they are north, northeast, east, northeast, east, southeast, south, southeast, south, southwest, west, southwest, west, northwest and north, northwest. हम लोग के पास 8 3 लेटर्स पॉइंट होता है जिसमें 3 अक्षर होते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट. Lastly, 16 by points, that is 4 per quadrant. They are northeast by north, northeast by east, etc. through south and west. आखिरी में हम लोग के पास 16 पॉइंट बच जाते हैं. 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट बाय नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बाय ईस्ट से हम लोग पता चलता है, जो साउथ से वेस्ट तक जाते हैं. For accurate work, the rim of the card is also divided into 360 degree from north 000 through east 090, south 180, west 270 and back to north 000. Each of the 32 points therefore is called value of 11.25 degree. Between true north and the magnetic north at the particular place is called variation. The value of it is printed on the navigation chart. हम लोग का जो मेजरमेंट होता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, अगर उसमें कुछ डिफरेंस आए तो उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, जो नेविगेशन चार्ट में प्रिंट होकर रहता है. The difference between the magnetic north and the compass needle is called deviation. It is taken from the deviation curve which is available on the bridge. हम लोग का जो कंपास में नीडल होता है और मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपास नीडल में जो डिफरेंस दिखाते हैं उसको हम डेविएशन बोलते हैं, जो जिसका डेविएशन का कर्व लाइन हम लोग को बिज से पता चलता है. This combined effect of variation and deviation on a compass needle is called compass error. जो भी कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है वेरिएशन और डेविएशन के अंदर उसको हम लोग कंपास एरर बोलते हैं.
A gyro compass consists of a gyroscope, which is a wheel spinning at very high speed. जो गायरो कंपास होता है वो एक तरह का कंपास होता है और वो बहुत तेजी से घूमता है. It runs on electricity. It does not get influenced by Earth's magnetic field, unlike a magnetic compass. ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है. जो अर्थ का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बताए थे वो उसके हिसाब से प्रभाव नहीं होता, वो अपने इलेक्ट्रिसिटी में ही घूम के हम लोग को रीडिंग बताता है. It has many repeaters fixed on bridge wings, inside wheelhouse and at steering platform. उसके ऊपर बहुत सारे रिपीटर्स लगे होते हैं ताकि ट्रू रीडिंग पता चल सके. वो ब्रिज विंग्स या व्हील हाउस या स्टीयरिंग प्लेटफॉर्म में लगा रहता है. Gyro compass error. Gyro compass error is mainly caused on account of a wear and tear of its parts or due to electrical faults, and it is named high or low when it compared with true directions. गायरो कंपास एरर हम लोग को दो तरीके से मिल सकता है. अगर कुछ पार्ट्स में खराबी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ज्यादा या कम हम लोग को मेजरमेंट मिले डायरेक्शन में. The gyro error is said to be high when the gyro reads higher than the true directions and low when it reads lower than the true directions. गायरो कंपास जब हम लोग को ज्यादा रीडिंग देता है एक्चुअल डायरेक्शन से, ट्रू डायरेक्शन से, तो हम लोग उसे हाई बोलते हैं. और अगर एक्चुअल डायरेक्शन या ट्रू डायरेक्शन से अगर हम लोग को कम रीडिंग देता है तो उसे हम लोग लो रीडिंग बोलते हैं. Accordingly, if the gyro error is high, it is subtracted from the gyro course to find the true course, and if it is low, it is added to the gyro course to find the true course. If no error exists, then the true course and the gyro course are same. गायरो कोर्स में अगर रीडिंग ज्यादा दिखाता है तो हम लोग उसे गायरो कोर्स से माइनस कर देते हैं ताकि ट्रू कोर्स हम लोग को मिल सके. अगर लो है तो हम लोग जो गायरो कोर्स है उससे माइनस कर सकते हैं ताकि हम लोग को ट्रू कोर्स मिल सके. अगर ट्रू कोर्स और गायरो कोर्स में कुछ डिफरेंस नहीं है तो कोई भी एरर नहीं है वहाँ पे.